Dr. Sanjay Barada. He is Professor and Head Department of Endocrinology, PGI Chandigarh. He is the Chairman of RSSEI Punjab chapter, actively involved in teaching and research, founder and current secretary of Social Support Group ADITI, and he has research publications of over 250 and contributed chapters in textbooks. Our second panelist is Dr. Sonu Goyal, who is professor in the Department of Community Medicine and School of Public Health, PGI Chandigarh. He has 18 years of experience in the field of public health. He is a recipient of various awards, including Young Researcher Award by IPS Sport Foundation, Harcharan Singh Oration Award, Vasudeva Oration Award, and many more to his credit. He is a Vice Chair of Tobacco Control Section and leading Empower Research Group of the Union. He is also adjunct associate clinical professor in School of Medicine, Faculty of Education and Health Sciences, University of Limerick, Ireland, and honorary professor in the Faculty of Human and Health Sciences at Swansea University, United Kingdom. It's an honor to invite our third panelist, Dr. Srinivas Reddy. He is a professor and head Department of Cardiology, Government Medical College and Hospital, Chandigarh, and professor PGI Chandigarh. He is a recipient of various fellowships, some of which include Fellowship of Interventional Cardiology from Annan Hospital, Seoul, South Korea, CVRF Asan Medical Center, Cardiovascular Research Foundation Fellowship, Interventional Fellowship at Cleveland Clinic, USA. His areas of interest include atherosclerosis, CAD, intravascular imaging, coronary physiology and imaging. I welcome you all. Now I request Dr. Sanjay Badada. Yes, sir. Sir, we request you to kindly give a brief description of the diabetic population in India as compared to the global prevalence. So, it is well known that we have a dubious distinction to have the probably highest number of type 2 diabetes individuals in the world till few weeks back, but currently the maximum number of patients of diabetes worldwide is in the China, and the rate of rise of patients with type 2 diabetes is at exponential rate in the country as compared to many other countries. And by virtue of our population, and we are genetically predisposed for the diabetes, and because of these two reasons, genetical predisposition as well as because of environmental factors, the prevalence of diabetes is progressively rising. Unfortunately, the part of the country where we reside, Chandigarh and Punjab, is the highest highest prevalence of diabetes in the country. So somebody says that China is the world capital of diabetes. In that case, Chandigarh is the capital of diabetes of India, because the prevalence of diabetes in Chandigarh is very high. That is approximately 14.6% from a ICMR INDIAB study that was conducted 5 years back. We have recently conducted a study in our Chandigarh that was involved 4 sectors of the Chandigarh, and after exclusion of patients those are having non-diabetic, we found 2%, 3% extra diabetes individuals, as well as approximately 15% of patients has pre-diabetes, meaning by that the hyperglycemia load in Chandigarh is nearing around 30%, which is really very high. And these 15% of pre-diabetes individuals are going to convert in the diabetes by every 5 years around 5 to 10%. So they are going to develop more number of diabetes individuals over a period of time. So the prevalence is very high, and obviously we have to do drastically to reduce the prevalence, to control the diabetes. So what are the major reasons for high prevalence of diabetes in Chandigarh? So I
think major reason, 2-3 things are maybe important. One is that increasing awareness. The Chandigarh population is one of the literate city of the country, and maybe second highest per capita income in the country. So the diabetes is directly proportional to wealthness. Of course, the people are more wealthy, they having more big abdomen, and that is directly proportional to the diabetes. So that is one reason. And of course, the increased awareness, so people are getting their tests done more frequently. So that is another reason. And maybe gradually changing lifestyle. We are say more towards the westernization world, going late night parties, eating heavy food, drinking is very common. You know that maybe the ambulance will take some time to reach to your house, but pizza can reach in 30 minutes, and they use all very interesting offers. If you will not deliver pizza in 30 minutes, it will be free. And lot of people are taking that advantage, and that is a very concentrated food. That is one of the reason. And unfortunately, Chandigarh, the parks are lot, but often people are not going there. So we can encourage people to reach to the park, do physical activity, that can be helpful. Thank you, sir. What is the relationship between diabetes and hypertension? So often I say there is a term called insulin resistance. If I say insulin resistance is the mother, then hypertension and diabetes are the brother and basically daughter and son of the insulin resistance. So they both go hand in hand. Sometime the hypertension comes first, followed by diabetes, or in some cases diabetes comes first, then followed by hypertension. But इन दोनों का जुगलबंदी है, दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि they both are the product of the one mother, that is the insulin resistance and obesity. Thank you, sir. So, what is the importance of implementing prevention activities or the prevention projects in this region for reducing the prevalence of diabetes? I think it's a very interesting question, and I'll take you back few years back. When I was a school student, डायबिटीज़ वॉज कंसिडर्ड एज ए राज रोग, राजा महाराजाओं की बीमारी मानते थे. वो राज रोग आज एक आम रोग हो गया, हर एक आदमी को डायबिटीज़ हो रहा है और प्रेवलेंस इज़ वेरी हाई. अगर हम 30 साल पहले जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्कूल जाने के लिए अक्सर पैदल जाते थे लोग बाग, या स्कूल जाने के लिए साइकिल पे चले जाते थे, लेकिन कोई बस नहीं होती थी ज़्यादातर जगहों पे, तो पैदल चलते थे. फिजिकल एक्टिविटी का एक बड़ा रोल होता था. ना कोई स्विगी होता था, ना कोई पिज़्ज़ा होता था, ना कोई बर्गर होता था, सब घर का खाना खाते थे. और जो घर पे खाना बनता था उसमें घर के परिवार के लोगों को भी मेहनत करना पड़ता था. तो एक तरह से एक फ़िज़िकल एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा रोल था. जाने अनजाने में या ज़रूरत के हिसाब से वो फिज़िकल एक्टिविटी होती थी. पर अगर हम आप देखें तो वो सारी चीज़ें बंद हो गई. अब कपड़े धोने के लिए मशीन है, खाना बनाने के लिए सारी फैसिलिटीज़ है, एसी ऑन करने के लिए रिमोट है, टीवी ऑन करने के लिए रिमोट है, और खाने की सुविधा आपको 12 घंटे 24 घंटे जब आप फ़ोन करोगे तुरंत आपको मिल जाएगी. तो ये सब चीज़ें होने की वजह से हमारा फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया, और सेम टाइम हमारा स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है. आप देखेंगे तो हर कोई परेशान है, किसी के पास टाइम नहीं है. सो ये सारी चीज़ें मिल कर के, फिज़िकल एक्टिविटी का नहीं होना, खाने का 24 घंटे उपलब्ध होना और स्ट्रेस, ये 3 मेजर फैक्टर है. अगर आप इन 3 मेजर फैक्टर्स को आप अगर टारगेट कर सकते हैं तो आई थिंक हम लोग फिर से डायबिटीज़ का प्रेवलेंस और डायबिटीज़ का बर्डन कम कर सकते हैं. क्योंकि जो इंडियंस पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ के लिए जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है. तो हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है कि हमको डायबिटीज़ होना का संभावना ज़्यादा है बाकी लोगों के कंपैरिजन में. बट जब जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के साथ साथ ये एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी साथ में आ गए तो उसके बाद डायबिटीज़ का प्रेवलेंस अचानक बढ़ गया और स्पीड से बढ़ता जा रहा है. तो हम ये 3 चीज़ों को टारगेट करना चाहिए. हम छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं कि आप ऑफिस के अंदर कार एकदम ऑफिस के बाहर पार्क नहीं करेंगे, आप थोड़ा दूर पार्क कर सकते हैं, वहाँ से पैदल चल सकते हैं. अक्सर हमने देखा कि हम लिफ्ट का इंतज़ार करते हैं, 2 मिनट 5 मिनट लिफ्ट के बाहर खड़े होते हैं कि लिफ्ट आ जाती तो मैं चल जाता हूँ. तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं. घर से थोड़ा 5 मिनट पहले निकल के आप लिफ्ट का इंतज़ार करें.
ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने देखा कि लोगों को इवन कोविड टाइम में भी लोगों ने 10-10 हज़ार स्टेप्स घर में करते थे। तो पॉसिबल है, अगर हम प्रण लें, अगर हम डिसाइड करें कि नहीं हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, तो ये सब संभव है। और जो ये सब कुछ करेगा वो एक सच्चा देशभक्त भी होगा, क्योंकि देशभक्ति के लिए हर कोई आदमी जाकर के बॉर्डर पे लड़ नहीं सकता है। तो जहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छा काम करें तो वो भी एक देशभक्ति है। और डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी है जिसकी जो दवाइयाँ आती है, फॉर्चुनेटली काफ़ी दवाइयाँ हिंदुस्तान में बनती है, बट कुछ दवाइयाँ ऐसी भी है जो बाहर से खरीदी जाती है, बाहर से बन के आती है, उसका अभी भी पेटेंट ख़त्म नहीं हुआ है, और उसके चक्कर में हम बहुत सारा पैसा फॉरेन करेंसी चली जाती है। तो अगर आप अपने आप को डायबिटीज़ से प्रिवेंट करते हैं, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करते हैं, तो ये सारी दवाइयों का खर्चा कम हो जाता है, और तो एक अच्छा देशभक्ति होगा अगर आप अपना आप को डायबिटीज़ मुक्त रखेंगे, ब्लड प्रेशर मुक्त रखेंगे। और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दोनों बीमारियों की वजह से डॉक्टर रेड्डी के पास सारे पेशेंट चले जाते हैं, और हमें दुख है कि वो पेशेंट फिर हमारे पास नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि हार्ट बीमारी हो गई तो अभी बोलते हैं डॉक्टर रेड्डी को दिखा रहे साहब, वही मैनेज कर रहे हैं। तो आप समझ गए मेरे कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ जिसको है, हाइपरटेंशन जिसको है, उनको हार्ट का बीमारी बहुत कॉमन होता है, कैंसर का बीमारी भी कॉमन होता है। और ये सब काम के लिए डॉक्टर सोनू गोयल का डिपार्टमेंट बनाया गया है, और ये इसके अंदर अपना पूरा भूमिका निभा सकते हैं और निभा भी रहे हैं कि आज हम सब लोग इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं और इस चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं। उसका कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वो कर लेते हैं। Thank you, sir. Thank you so much. Now my question is to Dr. Reddy. Sir, could you please give a brief description of hypertensive or CVD population in India as compared to global prevalence? हाँ, जो इंडिया में करंटली हाइपरटेंशन का प्रिवेलेंस है, मोस्टली इसके अंदर होते हैं, वेदर इट इज़ सेल्फ रिपोर्टेड मतलब पेशेंट अपना पे इसका बीपी किसी से चेक करवा के डॉक्टर के पास आकर रिपोर्टिंग करते हैं, या स्टडीज़ में जाके हम या किसी फिजिशियन जाके स्टडीज़ करके रिपोर्टिंग करते हैं। सो एवरेज इंसिडेंट्स ऑफ करंट है 25 to 30% है जो करंट सेल्फ रिपोर्टेड इंसिडेंट। बट ओवरऑल इफ फिजिशियन जाके अपना जाके सर्वे करेगा तो इट रेंजेस टू 60%। सो ओवरऑल इसका मतलब मतलब 4 out of 10 इंडिविजुअल्स इन इंडिया आर हाइपरटेंसिव। सो अगेन ये ना एज के ऊपर डिपेंड होता है, 18 और ये आज एज बढ़ते जाते हैं वो हाइपरटेंशन का प्रिवेलेंस भी बढ़ते जाएगा। सो ऑन एन एवरेज इफ टेक 45 करके मान लो, सो एट द एज ऑफ 45 देर आर 45% चांसेस आपका हाइपरटेंशन हो जाएगा। जो ऐसे 65 इंक्रीज कर तो आपका एज के हिसाब से वो प्रिवेलेंस से वो बढ़ते जाएगा। सो करंटली चंडीगढ़ में सेल्फ रिपोर्टेड जो प्रिवेलेंस है 37.9% है, एंड पंजाब में 42% है सेल्फ रिपोर्टेड। बट जो स्टडीज़ बाहर जाके कम्युनिटी में जाके करेगा तो दैट विल बी फॉर चंडीगढ़ इट इज़ 5 points हायर एंड पंजाब इट इज़ 10 points हायर। ठीक है। सो आप मैडम ये पूछेगा पंजाब में प्रिवेलेंस क्यों ज़्यादा है, इट इज़ नॉट पंजाब में प्रिवेलेंस ज़्यादा का नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल एंड डेमोग्राफिक ट्रांसिशंस इन द कंट्री एंड जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कंट्री पूरा इंडिया में। सो प्रिवेलेंस है ना हर जगह पे अलग अलग हो जाते हैं इसका, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू पंजाब, इट इज़ थ्रू आउट द कंट्री ऐसे काफ़ी डिस्पैरिटीज़ हो जाते हैं। स्पेशली आप देखे जाएगा तो जो स्टेट्स है जिसके अंदर ज़्यादा अर्बनाइजेशन है इसमें हो रहा है उसमें हाइपरटेंशन डिटेक्शन भी ज़्यादा होते हैं, ये भी ज़्यादा होता है। सेम चीज़ आप देखेगा तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में आपको डिटेक्शन भी कम हो जाता है। इनफैक्ट ओवरऑल देखिएगा तो वेस्ट बंगाल में इंसिडेंट हमेशा कम ही दिखाते हैं 19%, बट एक्चुअली कम ही है या उधर जाके डिटेक्शन वगैरह नहीं हो रही है नहीं पता। सो ओवरऑल बिकॉज ऑफ द हायर रेट ऑफ डिटेक्शन रेट इन चंडीगढ़ एंड सम प्रॉस्परस स्टेट्स इन द कंट्री आपको ज़्यादा प्रिवेलेंस दिखे जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द सोशल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अर्बनाइजेशन इन द कंट्री you tend to detect a higher prevalence of hypertension. Thank you, sir. Sir, आपने second question का answer दे दिया है what are the major reasons. Then could you please explain the relationship between diabetes and CVD? Okay, so ये दोनों है ना जैसे डॉक्टर संजय बद्रा ने पहले भी क्या कह चुका, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। जिस पेशेंट का डायबिटीज़ है जो उसको 3-fold हाइपरटेंशन होने का
वो हो जाते हैं। सो जिसके अंदर अगेन दिस ऑल इट इज़, यू कैन से इट इज़ लाइक ए कार्डियोवास्कुलर कंटिन्यूम। आपका एक पेशेंट का डायबिटीज़ हो गया, वो साथ साथ ये जुड़ जाएगा, फिर आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क, इसका मतलब इसके अंदर जो हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक होगा, या इसका किडनी डिजीज होगा, ये सब बढ़ते जाएगी। इसलिए से सिंगल वन वे ट्रैफिक जैसे जाते जाएगा इसका। सो ईच फैक्टर आपको ऐड होता रहेगा, आपका रिस्क बढ़ते जाएगा। Thank you, sir. So, what according to you is the importance of implementing prevention activities and the project like SMHSP in this region for reducing the prevalence of hypertension in our seniors? सो आप वो देखेगा तो ओवरऑल का, मैडम आपको फर्स्ट क्वेश्चन का वर्ल्ड प्रिवेलेंस में 1990 से लेके अब 2020 में और द पास्ट 30 इयर्स द इंसिडेंट जो कार्डियोवास्कुलर इंसिडेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन ऑलमोस्ट डबल्ड, मतलब ऑलमोस्ट ट्वाइस हो गया। सो इसके अंदर क्या है, तब से तो हम 1990 से पढ़ी जा रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ी जा रहे हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल। सो हमारा ओवरऑल अभी भी करंट इंडिया में ओनली 73% ऑफ द पीपल हु आर डिटेक्टेड टू हैव हाइपरटेंशन आर बीइंग ट्रीटेड, मतलब 25% अभी भी दे आर नॉट ऑन ट्रीटमेंट डिस्पाइट हैविंग हाइपरटेंशन। और दूसरा हार्डली 10 to 15% ऑफ द पेशेंट्स आर ओनली हैविंग एक्चुअल वेल कंट्रोल ब्लड प्रेशर। सो हमें शुरू से यही चीज़ हम रिसर्च में पढ़ी जा रहा है, अभी तक वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, जो प्राइमरी प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल। सो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे यूएसए में दिस टू जो लास्ट जो मैंने बता दिया ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, दे हैव अचीव्ड 80 to 90%। सो इवन इन लो इनकम कंट्रीज जैसे कोस्टा रिका में, इसमें दे हैव गॉट ए वेरी गुड, कोस्टा रिका एंड डेवलप्ड कंट्रीज लाइक कनाडा, दे हैव गॉट ए गुड प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन will treat most of the your patient, and it makes a lot of difference on your expenditure like GDP of the country, and overall decrease in the non-communicable diseases. Thank you so much, sir. Now my question goes to Dr. Sonu Goyal. Sir, I would like you to briefly describe about our project and also regarding the relevance of the theme of the World Diabetes Day. देखिए, पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पर। हम दोबारा मिले हैं मीडिया पर्सन के साथ और बड़े इम्पॉर्टेंट डे पे मिले हैं, जो वर्ल्ड डायबिटिक डे है वो कल हम मनाने जा रहे हैं। और जैसे कि अभी डॉक्टर संजय ने बताया, डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ ये सब आपस में बहुत मिले हैं। बड़े कम केसेस ऐसे होते हैं जिनको एक बीमारी हो दूसरी बीमारी ना हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं कि जैसे बताया गया 7.5 करोड़ के करीब हमारी जनता जो है इंडिया की, वो डायबिटीज़ से पीड़ित है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसमें से 50% लोगों को पता नहीं है कि उसको डायबिटीज़ है। तो हमें आधे लोगों को, 47% लोगों को जो यही नहीं पता कि हमें डायबिटीज़ है। तो ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ें हैं, बिकॉज पता है तो हम दवाई ले रहे हैं, हम उसका इलाज करा रहे हैं, पर जिनको पता ही नहीं है उसके जो शरीर पर जो असर हो रहा है वो तो हो रहा है, पर हम उसकी दवाई ले रहे हैं। सबसे पहली बात ये, तो हमें अवेयरनेस करनी पड़ेगी लोगों को। दूसरा, जैसे कि ये बताया गया अभी कि दोनों आपस में, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत साथ साथ चलते हैं। तो हम ये भी बोलना चाहेंगे कि एक बाई डायरेक्शनल स्क्रीनिंग जो है, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं उनका हाइपरटेंशन भी हो एक प्रोग्राम के अंदर, और हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है उनको डायबिटिक क्लिनिक के अंदर भी आए, जिससे कि उसकी जो डिटेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो। और जैसा बताया गया कि ये तो जो पॉपुलेशन मैंने बताई है जनरल पॉपुलेशन 15 साल से ऊपर के, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया, जैसे जैसे एज बढ़ती है डायबिटीज की प्रेवलेंस वो हाई होती है। और ये भी माना गया है कि जो अभी 7.5 करोड़ हैं वो 15 करोड़ हो जाएंगे 2045 तक हमारे कंट्री के अंदर, WHO की जो रिपोर्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि इंक्रीज ही करेगी अभी हमारी, और हो सकता है कुछ समय बाद, ये डॉक्टर संजय बताएंगे, कि ये भी प्रिडिक्शन है कि जो चाइना अभी आगे चल रहा है हमारे से, वो चाइना को भी हम पिछाड़ देंगे अगर हम इसी तरीके से डायबिटिक के ऊपर काम अगर हम स्ट्रेंथन नहीं करते हैं। अब इसके लिए हमने जो पंजाब के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है 2 साल से,
जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग हाइपरटेंसिव। उसके अंदर हम हाइपरटेंशन को स्ट्रॉन्ग, हाइपरटेंशन सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। तो जब तक हाइपरटेंशन सर्विसेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक हम ये सारे रिस्क फैक्टर जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और बाकी कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर, जिसमें कि अभी जैसे बताया पिज़्ज़ा, बर्गर, हम ये बोलते हैं HFSS फूड, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट फूड, जो हम जंक फूड बोलते थे उसका नाम जो नॉर्मली हमारी भाषा में बोलते हैं HFSS फूड। तो ये सारे जो फूड हैं ये सारे HFSS फूड्स हैं, और इसके अंदर हमारे को जो एनर्जी है वो कम मिलती है, एम्प्टी कैलोरीज काफ़ी होती हैं, और साथ में फैट ज़्यादा होता है, किसी में नमक ज़्यादा होता है। जो केंड फूड्स हैं उसके अंदर नमक बहुत क्वांटिटी का होता है, हमें पता नहीं चलता, शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे। और आजकल जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर अभी देखा गया कैंटीन्स, स्कूल की कैंटीन्स हैं वो हमारी उसके अंदर भी हमारे इस तरह के फूड काफ़ी मिल रहे हैं। पर अब जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर हेल्थ प्रमोशन कैंटीन्स भी बन रही हैं। तो हमारा पर्पज़ यही है, 2 साल से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पंजाब सरकार को हम ये अवगत कराते रहें कि किस तरीके से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और सारे रिस्क फैक्टर्स को हम साथ लेके चल सकें, जिससे कि पंजाब के अंदर जो सिटी जैसे चंडीगढ़ है, पंजाब है, जहाँ सिटी ऑफ और स्टेट ऑफ हाइपरटेंशन डायबिटीज़ कहते हैं, तो वो हम उसको कम कर सकें। नीति कुछ और? Why are both of these hypertension and diabetes called silent killers? देखिए, साइलेंट किलर का मतलब क्यों है, आपने देखा होगा हम इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर हमने साइलेंट किलर, ये ज़्यादा शोर नहीं मचाता मारने से पहले। जो लोग होते हैं वो पता नहीं चलता मर कैसे गए। आपने पिछले ज़माने में सुना होगा, बोलते हैं इनकी डेथ हो गई जी, बिल्कुल हट्टे कट्टे थे। तो क्या रीज़न हो सकता है ऐसे हट्टे कट्टे लोगों की डेथ हो गई? तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, डिटेक्ट नहीं हुआ हाइपरटेंशन, तो वो, या डायबिटीज़ हो सकती है, डिटेक्ट नहीं हुई। तो ये 2 साइलेंट किलर हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं हमारी आबादी। So could you please describe the public health perspective on the prevention of these 2 silent killers? देखिए, ये सारी बातें जो हैं डॉक्टर संजय ने और डॉक्टर श्रीनिवास ने बता दी हैं। थोड़ा सा ऐड करूंगा इसके अंदर। हमने बात करी कि फिजिकल एक्टिविटी की, जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और लिफ्ट हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरी है, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का इस्तेमाल बहुत ही कम करें। दूसरी, अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी, हम बोलते हैं कि ऑफिस में रहते हैं तो हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो मैं क्या करता हूँ, एक अलार्म हम लगा लेते हैं, मैं तब आधे घंटे का, तो कुछ भी चीज़ चल रही हो थोड़ा सा हम वॉक करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा याद रहता है हमारे को। फ्लूइड इंटेक हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लें, उससे हमारी ये है कि सेटाइटी, भूख वगैरह ज़्यादा नहीं लगेगी। और सेंट्रल ओबेसिटी जो बात करते हैं, BMI, बॉडी मास इंडेक्स जो है, वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का और इवन हाइपरटेंशन का। तो हमारी जो मोटापा है उसको हमें कम करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये अगर हम रिस्क फैक्टर्स कुछ इस तरीके से कम करेंगे, और योगा का बड़ा रोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो अगर हमें सुबह योगा की प्रैक्टिस लग जाए तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं है अगर वो सप्लीमेंट करें। And what according to you can government do in this regard? आई थिंक गवर्नमेंट के बारे में मैंने बता दिया। एक सबसे बड़ा है बाई डायरेक्शनल स्क्रीनिंग, कि जो हाइपरटेंशन के अंदर हाइपरटेंशन क्लिनिक में मरीज़ हैं उनकी डायबिटीज़ चेक जरूर हो, और जो डायबिटिक के अंदर पेशेंट आए हैं डायबिटिक क्लिनिक में उनका हाइपरटेंशन चेकअप हो, और इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि इनके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं जाता है गवर्नमेंट का क्योंकि ये साइलेंट किलर है। इससे कोई नहीं बोलता कि हाइपरटेंशन से मौत हुई है, कभी नहीं बोलते। हार्ट डिजीज से मौत हुई है बोलते हैं, पर हाइपरटेंशन से मौत हुई है कभी नहीं बोलते। डायबिटीज़ से मौत हुई है कभी नहीं बोलते, हालांकि ये मेजर किलर्स हैं। तो इन पे फोकस दोबारा आना चाहिए, बिकॉज यही एक जड़ है जिसके कारण ये डेथ्स वगैरह होती है। Thank you, sir. Now the house is open for media interaction. क्वेश्चन इज इट ट्रू कि एलोपैथिक डायबिटीज का कोई इलाज है नहीं, जिसकी ऑर्डिनरी मेडिसिन कहते हैं वी कैन रिवर्स इट? सर ये मास्क आई थिंक ये काफ़ी सवाल कॉमन है, पूछते रहते हैं कि
पहले तो मेरे को नहीं पता कि अदर देन एलोपैथी कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कहता है कि डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है, मुझे नहीं पता है। डायबिटीज एलोपैथी में कहते हैं नहीं हो सकती क्यों, तो इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप मेडिसिन ले सकते हैं, बस इंसुलिन ले सकते हैं, ये क्वेश्चन। सो बिल्कुल ठीक है कि डायबिटीज़ का क्योर नहीं है। अगर आप क्योर वर्ड यूज़ करेंगे जब कि आपको डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है और काफ़ी मुश्किल है। इसका रीज़न ये है कि जब आपको डायबिटीज़ होता है तब ऑलरेडी आपका 90% सिस्टम ख़राब हो चुका होता है, तभी डायबिटीज़ होता है। समझे ना? आपको बॉडी ने, भगवान ने हमारी बॉडी को इतना सक्षम बनाया है, इतना ये परिष्कृत कंप्यूटर है कि जब तक 90%, 10-15%, 20% भी ये काम कर रहा है पेनक्रियाज, तो डायबिटीज़ नहीं होगा। वो जब होगा जबकि 90% बीटा सेल काम नहीं कर रही है, 90% लोगों को कहने का इंसुलिन, तभी डायबिटीज़ होगा। तो जब ऑलरेडी सिस्टम का 90% ख़राब हो गया तो उसके बाद जब मैनिफेस्टेशन होता है वो रिवर्स होने का चांस काफ़ी कम है, न के बराबर है। ओनली कुछ कंडीशंस है जिसके अंदर रिवर्स हो सकता है कि जो लोगों का वज़न ज़्यादा है। आप ये एक लाइन लिख सकते हैं, वज़न ज़्यादा का क्या मायने है? हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100, वेरी सिंपल फॉर्मूला। हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100, जितना बचता उतना वज़न होना चाहिए। अगर उससे वज़न ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका वज़न ठीक नहीं है, आपका वज़न ठीक करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ इस हॉल के अंदर भी लगभग 60-70% लोगों का वज़न ज़्यादा ही है। ठीक है, तो वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करना चाहिए। तो इसलिए रिवर्स होने का चांस काफ़ी कम है, पर हाँ कंट्रोल हो जाए वो भी बहुत अच्छा है। अभी हमारा करंट टारगेट है कि डायबिटीज़ नहीं होए, अगर हो गई तो वो कंट्रोल में रहे। तो ऐसे कोई पैनक्रियाटिक सर्जरी नहीं बनी जिससे हम पैनक्रियास को रिकवर कर सकें? पेनक्रियाज का सर्जरी इन द सेंस कि आप नया पेनक्रियाज लगा दें, ये आपको ये समझाता हूँ। अगर सपोज करो कि आपको यहाँ से मनी माजरा जाना है, एक मनी माजरा का रोड पूरा उबड़ खाबड़ कितना भी ख़राब है, एक मनी माजरा का रोड एकदम मध्य मार्ग के जैसे स्मूथ है। अगर आपको हर बार नई गाड़ी दे दें और आप बोलो कि आप तो इसी रोड पे जाओ, तो क्या होगा? नहीं काम करेगी नई गाड़ी भी। आप नया पेनक्रियाज भी लगा देंगे, लेकिन पेनक्रियाज को जहाँ काम करना है वो सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो नया पेनक्रियाज भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वो एक सॉल्यूशन नहीं है, वो एक झूठी उम्मीद होगी लोगों को कि फला जगह पे डायबिटीज़ पेनक्रियाज बदलने से ठीक हो रही। वो टाइप 1 डायबिटीज़ के लोगों के लिए है जिनका कि पेनक्रियाज काम नहीं करता है, बाकी सिस्टम ठीक है, तो उस केस में पेनक्रियाज बदलते हैं। और हमारे पीजीआई के अंदर काफ़ी लोगों को ये काम चल भी रहा है और अच्छा भी कर रहे हैं। एक रोटो सिस्टम है जो कि पता है नरेंद्र जी को, कि वो डिपार्टमेंट काम करता है, उसमें एंडोक्राइन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है और ट्रांसप्लांट वाले भी हैं, उन लोगों को काम करेगा। टाइप 2 के अंदर पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट का कोई ज़्यादा मेजर रोल नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि 14.6 प्रेवलेंस जो बताया चंडीगढ़ का, ये एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कुछ इंक्रीज हुआ है? मुझे लग रहा है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि जिसके बेसिस पे मैं कहूँ कि ये बढ़ गया। पर हाँ, ऐसा पता किया जा सकता है, बिकॉज 3 साल पहले हमने एक स्टडी किया था, चंडीगढ़ अर्बन डायबिटीज़ स्टडी, कड स्टडी, उसके अंदर जो प्रेवलेंस हो पीछे के कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ गया है। तो अगर हम ये स्टडी वास्तव में करना चाहते हैं तो हम ये स्टडी को अभी करंटली एक बार फिर से एनालाइज करना चाहिए कुछ सेक्टर में कि अभी क्या डायबिटीज़ का प्रेवलेंस है। पर हाँ, चांस है बढ़ने का। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो कि पिछले 2 साल से जो कोविड चल रहा है, वो कोविड की वजह से लोगों का फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा कम हो गया। और दूसरा एक मेजर रीज़न मुझे समझ में आया, अभी तो नहीं, बट जब कोविड चल रहा था तब लोगों ने क्या करा कि कुछ भी सिम्टम होते हैं, कोविड का टेस्ट नहीं कराना, पर जस्ट से जाके दुकान से स्टीरॉयड का गोली ला के खा लेना। सो इसकी वजह से डायबिटीज़ का एक प्रेवलेंस बढ़ने का एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है जिसके बेसिस पे मैं स्ट्रांगली कह सकूं कि हाँ जी पिछले 2 साल में डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बढ़ गया है। तो डॉक्टर साहब, उसको शेड्यूल एच में क्यों डालते हैं? प्रेडनिसोलोन हो गया और भी कई स्टेरॉइड आते हैं, तो अगर ये ऐसा कुछ हो जाए तो कम से कम ये डायबिटीज वाले मरीज तो बच जाएंगे। आप किसी इंडिया में शेड्यूल एच समझाइए फिर। शेड्यूल एच का मतलब ये होगा कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आप ओवर द काउंटर नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना? जैसे आपको
बुखार का गोली आप जाके उसको बुला दिया जी दे दो, वो दे देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपको कुछ दिनों पहले तक आपको जो ये ओपियोइड मिल जाते थे, जो लोग दवाई पी लेते थे, कोडीन का टेबलेट मिल जाता था, अभी वो नहीं मिलता है क्योंकि आप रिस्ट्रिक्शन है उस पर। तो ये स्टेरॉइड भी उसी तरह की कैटेगरी में डालने के लिए बोल रहे हैं कि हर कोई नहीं ले सकता है। ये गवर्नमेंट को सजेशन दिया जा सकता है और वो उसके ऊपर में काम कर सकते हैं। तो किसी और का कोई सवाल? अच्छा, पैनक्रियाज का जैसे अब एक ही इलाज है ट्रांसप्लांट, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है? नहीं, इलाज तो बहुत है। वज़न कम करो, एक्सरसाइज करो, खाना पीना कंट्रोल करो, दवाई ठीक से लो, इंसुलिन का ज़रूरत तो इंसुलिन लो, स्ट्रेस मत रखो, तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। और पेनक्रियाज का ट्रांसप्लांट बोलना इजी है, बट उसके बाद में उसको काम करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, उससे भी डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो एक सॉल्यूशन नहीं है। वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनका कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनको शुगर बहुत ज़्यादा हिचकोले मार रहा है कि कभी 500 कभी 50, उन लोगों के लिए काम कर सकता है। बट डे टू डे में रूटीन में ज़रूरत नहीं है और बहुत खर्चा भी होता है। और पेनक्रियाज मिलेगा कहाँ पे? भगवान ने एक ही दिया पेनक्रियाज, तो कोई बंदा अपना पेनक्रियाज दूसरे को दे नहीं सकता है। किडनी तो 2 दी है, तो एक दूसरे को दे सकता है, और पेनक्रियाज तो एक ही दे सकता है। लेकिन हाँ, आप मीडिया लोग आज एक मैसेज दे सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली किसी का यंग एज में डेथ हो जाता है, रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है, आप उन लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं कि अगर आपका रिलेटिव नियर डियर का बचने का गुंजाइश नहीं है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रेन डेड है, तो वो अपने अंग दान कर सकते हैं, और उस अंग दान में पेनक्रियाज का भी एक दान कर सकते हैं, और वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 4-5 सालों में हमने करीब 25 पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट किए हैं, और काफ़ी लोग अच्छा कर रहे हैं। वो लोग दे आर कितने सक्सेसफुल रहे सर? मे बी शुरू के दिनों में ज़्यादा प्रॉब्लम था, पर अभी लास्ट के दिनों में ऑलमोस्ट जिनको भी किया दे आर डूइंग वेरी वेल। रिस्पॉन्ड करता है सर, मतलब किसी और का ब्लड ग्रुप का कोई प्रॉब्लम? उसमें फिर दवाई देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होती है, वो चलती है। आई थिंक ये सवाल हम इससे थोड़ा हट रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कैन आस्क द रिलेवेंट क्वेश्चन सो माय अदर कलीग्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट।